Hello class, I hope you all are fine at your home. Now, let us continue with our next topic. Earlier, before this, what we have learned? We have learned about common factors, we have learned about common multiples, and we have learned the prime factorization method through which we can find prime factors of a number. We have learned two methods for finding the prime factor of a number, that is tree method, okay, factorization tree method and division method. Now what we are going to do, we are going to learn about HCF, okay, we are going to learn about HCF. What is HCF? HCF means highest common factor, that is known as HCF. The largest of the common factor is called the greatest कॉमन फैक्टर और द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. दो नेम्स होते हैं इसके, एक तो हो गया ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर और एक हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. इसके जितने भी फैक्टर्स होंगे वो सब एक प्राइम नंबर्स होंगे. और वो कैसे होगा? देयर आर थ्री मेथड्स टू फाइंड आउट द HCF. कौन कौन से तीन मेथड्स हैं? फर्स्ट वन इज यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो डिवीजन और ट्री मेथड था. सेकंड इज यूजिंग द कंटीन्यूअस डिवीजन मेथड, and the third one is using the long division method. In your book they haven't provided you using the using the continuous division method, but I am going to tell you how you can do by that method also. Now let us start by doing with the prime factorization method, how to find the prime factors of the number, or how to find the greatest common factor of these numbers. Let us start with, पहले हम 24 का करते हैं, ठीक है. वी विल स्टार्ट विद द प्राइम नंबर. हम लोग प्राइम नंबर से करना शुरू करेंगे. 12, 2, 6, 2, 3, 1 till remainder remains 1. Okay, these are the factors of 24. Okay, all these factors would be a prime number. Next, 48. Again we will start with the smallest prime number. 2, 24, 2, 12, 2, 6, 2, 3 and 3, 1. जब तक हमारे पास रिमाइंडर 1 ना आ जाए. और ये भी ध्यान रखना है जब हम इसे डिवाइड करेंगे वो जो फैक्टर्स होंगे वो सब प्राइम नंबर से ही होंगे. नाउ लेट अस टेक आउट 72. अगेन स्मॉलेस्ट, 2 3s are 6, 2 6s are 12, 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 9s are, फिर अब 2 तो होगा नहीं, 3 3s are 9, 3 1. अब हम कैसे निकालेंगे? हमने पता है कि हम कैसे निकाला था लास्ट टाइम हमने कॉमन फैक्टर. चलो हम निकालते हैं इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ठीक है, एक साइड हम लिख लेंगे सब जगह. जैसे मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ. 24 के लिखते हैं. 24 के कौन कौन से फैक्टर हैं? 2 into 2 into 2 into 3. ओके, नाउ ऐसे ही 48 के 2 into 2 into 2 into 2 and into 3. ओके, नेक्स्ट 72. तो स्टार्ट करेंगे 2 into 2 into 2 into 3 into 3. अब हम इनके कॉमन फैक्टर्स को सर्कल आउट कर लेंगे. ठीक है, हमें यहाँ पे क्या करना होता है? कॉमन फैक्टर्स को फाइंड करना होता है तीनों नंबर्स में, और उन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई जब हम करते हैं जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो इन सारे नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनता है. यहाँ पे 2 कॉमन है, here is also 1 2 कॉमन, तो एक 2 यहाँ पे लिख लिया हमने, 1 1 here also, तो एक और लिख लिया. now here 2 2 2, तो एक और 2 लिख लिया. अब 3 जो है कॉमन है तीनों में, है 2 नहीं है 3 नहीं है, हम इसे छोड़ देंगे. ठीक है, हम सिर्फ कॉमन फैक्टर्स की मल्टीप्लाई करते हैं आपस में. into 3, ठीक है, into 3 आ गया. तो ये हमने इसके कॉमन फैक्टर्स निकाल लिए. इस तरह सही से लिख लेते हैं 2 into 2 into 2 into 3. अब जो इनका प्रोडक्ट होगा
वो इन सारे नंबर्स का जो कि है 24, 48, 72 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। 2 to the 4, 4 to the 8, 8 3 the 24। तो क्या हुआ, 24 is HCF of 24, 48, 72। ये नंबर इन सारे नंबर्स का सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स हैं, जितने भी और फैक्टर्स होंगे साथ में। ठीक है, आई थिंक विद दिस पर्टिकुलर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको निकालना आ गया कैसे आप HCF निकाल सकते हैं किसी गिवन नंबर का। नाउ as we have done using prime factorization method finding out the highest common factor of these number, now let us start doing with the continuous division method. In continuous division method what you have to do, first thing you have to keep these three numbers arranged in a row manner, 24, 48 and 72। you have to keep them in a row manner। Likewise, इस तरीके से you have to start with a prime number and it should factorize all these number। वो नंबर उसे फैक्टराइज करना चाहिए तीनों नंबर को कॉमनली, और जब तीनों नंबर को कॉमनली हम फैक्टराइज करना नहीं हो पाएगा किसी नंबर से, तो वहीं पे क्वेश्चन को एंड कर देंगे। लेट अस स्टार्ट डूइंग 2 लेते हैं, 2 12 द 2 24 द 2 3 द 2 6 द। अगेन इनका कॉमन फैक्टर हो सकता है प्राइम 2 2 6 2 12 2 18 अगेन 2 3 2 6 and 2 9। अब ये 2 से भी मिस हो सकता है, लेकिन ये दोनों नहीं होंगे, तो हम लोग क्या लेंगे कॉमन फैक्टर में 3 कॉमन फैक्टर बनता है, 3 1 3 3 sorry 3 2 and 3 3। अब यहाँ पे 1 2 और 3 तीनों में से किसी के भी कॉमन फैक्टर्स हमें नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, 1 तो ऑलरेडी हमें डबल देंगे, इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स नहीं हो सकते। तो अब हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे इन जिन्होंने सारे डिजिट्स को डिवाइड कर दिया, 2 into 2 into 2 into 3, that is 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16 3 to the 24। ये मेथड ज्यादा इजी था, है ना, इसमें एक साथ कर लिया। बस ध्यान ये रखना है हमें एंड तक इसे डिवाइड नहीं करना, क्योंकि एलसीएम में ये सिचुएशन चेंज हो जाती है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। एचसीएफ में हमें वहां पे एग्जाम को क्वेश्चन को छोड़ देना है जहां पे हमें तीनों डिजिट्स के, दोनों डिजिट्स के, 4 डिजिट जितनी भी दे रखी हो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए, उनका कोई भी कॉमन फैक्टर ना बचा हो। ठीक है, 24 हो गया। सो एचसीएफ of 24, 48 and 72 is 24। I think you are able to understand using continuous division method also with this demonstration। Now moving further, let us learn about a log division method। We have done using the prime factorization method how to find the HCF, using the continuous division method we have find out। Now we are going to see about using log division method, how we are going to find the HCF of 2 or more than 2 numbers। First we are going to take 2 numbers। ठीक है, इसका रूल अलग है और इसका रूल जो 3 numbers का होगा उसका रूल डिफरेंट होगा। तो ये रूल क्या है, डिवाइड द लार्जर नंबर बाय स्मॉलर नंबर। 2 नंबर्स दिए हैं, हमें देखना है कौन सा लार्जर है कौन सा स्मॉलर है। लार्जर नंबर को डिवाइड करना है हमें स्मॉलर नंबर से। तो 3 5 7 3 5 7 डिवाइड बाय 255, यही कह रहा है। देन डिवाइड द रिमाइंडर। अब जो इसका रिमाइंडर आएगा उसे तब तक हमें डिवाइड करना है जब तक वो 0 रहना चाहिए। ठीक है, अब 255 2 जा तो हो नहीं पाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा 357 से, तो 1 जा 2 5 5। ठीक है, इसका रिमाइंडर आएगा आपका क्या 102। कैसे, 5 7 में से 5 गया 2, 5 में से 5 गया 0 and 1। ठीक, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अब इस नंबर को हम यहां पे ले आएंगे और डिवाइड करेंगे इसके रिमाइंडर से दोनों। 2 5 5
तो 255 102 1 जा छोटा हो जाएगा 2 जा 204 हो जाएगा। सबट्रैक्शन करेंगे 1 5 ऐसी 15। अब 102 को हम ले आएंगे इधर, ठीक है 102 को 102 51 2 जा 102 रिमाइंडर 0। नाउ क्या लिखा, अब एक और बात है, द लास्ट डिवाइजर जिससे ये रिमाइंडर 0 आएगा दैट वुड बी द HCF ऑफ दिस एंड दिस बोथ द नंबर्स। समझ में आ रहा है, जो लास्ट डिवाइजर होगा वो जिससे 0 आ रहा होगा रिमाइंडर, वो इन दोनों नंबर्स का HCF होगा। So HCF of 255 and 357 is 51. I hope with this particular example you would be able to do long division method for finding the HCF. Okay? Now we have learned how to find the HCF if we have two numbers using the long division method. Okay, I already told you the rule of it also. Now let me tell you HCF of two or more numbers, how to find it out. ठीक है, rule क्या है? First we have the HCF. First we have to find out the HCF of two numbers. हमें दो numbers लेने हैं, एक छोटा एक बड़ा, उसका HCF निकालना है पहले की तरह है, ठीक है। Then the HCF of the result. फिर जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट मतलब जो फाइनल डिवाइजर होगा उसका, और जो तीसरा नंबर हमारे पास बचा होगा उसका HCF निकालना होगा यूजिंग द सेम मेथड। लेट अस सी हाउ वी कैन डू इट। क्या करना है हमें, हमने 2261 ले लिया और 3059 स्टार्टिंग के नंबर ले लिए, ठीक है। 3059 2261 1 जा 2261 माइनस किया 798, फिर ये 226 जो है ये आपका यहाँ आ गया। हमने क्या किया, 719 है, इसे हमने डिवाइड किया, इसको इस पर्टिकुलर 261 को इससे डिवाइड किया, देन वी गेट 665, देन 798 इधर आ गया, 665 से डिवाइड किया 1 जा 133 रिमाइंडर बचा, फिर ये 798 जो है अगेन इधर आ गया, ठीक है। फिर हमने इसे डिवाइड करा तो हमें क्या मिला 0। तो हमारा HCF निकल आया दो नंबर्स का, HCF ऑफ 2261 एंड 3059 कितना है हमारा HCF इनका, दैट इज 133। अब रूल में क्या लिखा है, देन द HCF ऑफ द रिजल्ट, ये हमारा रिजल्ट HCF है, ठीक है। HCF of this and now this we are going to take out. In step 2 what we have to do, we have to find out the remainder here, इसका HCF, इसका इस पर्टिकुलर डिजिट का इस पर्टिकुलर डिजिट का HCF निकालना है। तो हम लोग लिख लेते हैं, हमारा स्टेप 2 है फाइंडिंग टू और मोर नंबर के HCF फाइंड करने का। 133 2 जा 266, रिमाइंडर हमारा क्या आएगा 5 ऐसे नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 6 आएगा, यहाँ पे भी 6 आएगा, ठीक। 133 5 सा 665 था पीछे वाले में, तो 665 रिमाइंडर 0। अब नाउ HCF ऑफ दिस एंड दिस इज आल्सो, HCF निकल के आ गया, HCF उधर भी HCF यही था, HCF ऑफ 2261 3059 and 3325 is 133। तो ये इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। आई नो थोड़ा सा बड़ा है बट सिंपल है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। इफ यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टी रिगार्डिंग इट यू कैन कमेंट और यू कैन टेल मी on the WhatsApp. Okay, thank you.